दिल्ली इंतखाबात के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के मॉनिटरिंग रूम से इंतखाबी ओहदेदार पोलिंग के दिन तमाम पोलिंग स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखे हुए हैं। जामे घरेलू सर्वे की कामयाबी और इसकी तफसीलात रियासती असम्बली में पेश करने पर मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए उनको तहनीत पेश की। इसी दौरान तेलंगाना असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर की, जिसमें मरकज़ी हुकूमत पर जोर दिया गया कि वो रियासत के जामे घरेलू सर्वे की तख्लीक करे, जो कि तेलंगाना रियासत की सिफारिशात के मुताबिक पूरी रियासत तेलंगाना में मुनक़्क़िद किया गया। पसमानदा तबक़ात, दर्जे फ़हरिस्त ज़ातों, दर्जे फ़हरिस्त क़बाइल और दीगर कमज़ोर तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बेहतरी के लिए ये सर्वे किया गया। ఫిబ్రవరి 4, 2024, ఫిబ్రవరి 4, 2025 ఈ ఫిబ్రవరి 4 అనే దానికి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఉన్నది. బడుగు బలహీన వర్గాలు, మైనారిటీలు, అదేవిధంగా మాలా మాదిగలు, ఉపకులాలు, వీళ్ళు చాలా సంవత్సరాల నుంచి, కొన్ని దశాబ్దాల నుంచి వాళ్ళకు చెందాల్సిన రిజర్వేషన్ల విషయంలో, ఆ సామాజిక వర్గాల పట్ల ప్రభుత్వాలు తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయంలో పోరాటం చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ పోరాటాలకు సంబంధించి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసి ప్రజాపాలన అందించిన తర్వాత దశాబ్దాల కాలంగా అపరిష్కృతంగా ఉన్న ఈ సమస్యల్ని పరిష్కరించాలని పట్టుదలతో కార్యాచరణను తీసుకొని ఫిబ్రవరి 4, 2024 నాడు మంత్రివర్గంలో ఆమోదింపజేసుకొని ఈరోజు తిరిగి మంత్రివర్గంలో ఆనాడు నిర్ణయం, ఈనాడు నివేదికను మంత్రివర్గంలో ఆమోదింపజేసుకొని ముందుకు వెళ్ళే క్రమంలో ఈ ఫిబ్రవరి 4కి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. అందుకే ఈ ఫిబ్రవరి 4ను తెలంగాణ సోషల్ జస్టిస్ డే కింద తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న బడుగు బలహీన దళిత అదేవిధంగా మైనారిటీ వర్గాలకు దశాబ్దాల కాలం అపరిష్కృతంగా ఉన్న సమస్యకు మంత్రివర్గము, ఈ సభ శాశ్వత పరిష్కారాన్ని చూపించింది. ఈ శాశ్వత పరిష్కారాన్ని ఆయా వర్గాలు తెలంగాణ సోషల్ జస్టిస్ డేగా జరుపుకొని మనందరం కూడా అందులో పాల్గొంటే ప్రతి సంవత్సరం ఈ ఫిబ్రవరి 4ను మనం గుర్తు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ఇంత గొప్ప కార్యక్రమాన్ని కార్యాచరణ రూపంలో అమలు చేయడానికి మంత్రివర్గ సహచరులు, మంత్రివర్గ ఉపసంఘం, ఉన్నతాధికారులు ఎంతో శ్రమించి చాలా కట్టుదిట్టమైన ప్రణాళికతో ఈ మొత్తం వ్యవహారాన్ని అంతా కూడా ఒక చట్టబద్ధత కల్పించే కార్యక్రమాన్ని తీసుకొచ్చినందుకు వాళ్ళందరినీ కూడా అభినందిస్తున్నా. అదేవిధంగా సభలో ఈ చర్చ జరిగినప్పుడు ఈ చర్చలో పాల్గొన్న మంత్రివర్గ సహచరులతో పాటు ప్రతిపక్షానికి సంబంధించిన కేటీ రామారావు గారు, అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు, కూనంనేని సాంబశివరావు గారు, పాయల్ శంకర్ గారు, కవ్వంపల్లి సత్యనారాయణ గారు, కడియం శ్రీహరి గారు, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने लोकसभा में कहा है कि 7.25 लाख हिंदुस्तानी अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। 18,000 हिंदुस्तान वापस भेजा जा रहा है। क्या नरेंद्र मोदी हुकूमत वापस आने वाले हिंदुस्तानियों के लिए रोजगार का बंदोबस्त करेगी? उनके रेमिटेंस के नुकसान का क्या होगा? Come to USA, sir. Pew Research study has said that 7.25 lakh unauthorized immigrant Indians are in USA and 18,000 are in final list for removal. Are we going to accept all this 7.25 lakh? Are we going to accept this 18,000 who are in final list for removal? How many aircrafts you require? 300 aircrafts. Can this government has imagined what the loss of remittance? What will be their employment over here? हैदरा और डीआरएफ की टीमों ने बडलागुड़े में झीलों में अंधाधुंध मिट्टी डालने वाली टिप्पर लारियों को रोक दिया।
पहले मामले में डीआरएफ की टीमों ने बंडलागोड़ा पुलिस स्टेशन हदूद के इंदिरा सागर झील में मिट्टी डालने के लिए पहुंची 4 टिप्पर लारियों को रोक दिया। झील में मिट्टी डालने और इसे मुसत्ता करने के लिए इस्तेमाल होने वाले एक जेसीबी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। दूसरे मामले में पेट बशीराबाद में डीआरएफ की टीमों ने देवलापल्ली समरकुंटा झील में मिट्टी डालने के लिए पहुंची एक टिप्पर लारी को रोक दिया। इसे पेट बशीराबाद पुलिस के हवाले कर दिया। चरलापल्ली इंडस्ट्रियल एरिया में कल रात मुही बातिजदगी का वाक़या पेश आया। जराये के मुताबिक केमिकल फैक्ट्री में कल अचानक आग लगी, जिसके साथ ही वहां रखे हुए केमिकल के ड्रम्स फट पड़े। आग इस कदर मुहिब थी कि शोले काफ़ी ऊंचाई तक बुलंद हो रहे थे और इलाके में कसीफ धुएं के बादल छा गए। इस वाक़े के साथ ही फायर इंजनों को तलब करके आग बुझाने का काम शुरू किया गया। इस वाक़े में किसी तरह के जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान ज़रूर हुआ है। रुकन काउंसिल तीन मार मल्लाना ने साबिक बीआरएस हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने घरेलू सर्वे के मसले पर काउंसिल में गुज़िश्ता रोज़ इजहार ख्याल करते हुए बीआरएस के साबिक दौर हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने रिमार्क किया कि बीआरएस के दौर में कुत्तों, खिंजीरों और लोमड़ियों की तादाद की गिनती की गई, लेकिन बीसी तबकात की गिनती नहीं की गई। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధ్యక్ష సమగ్ర కుటుంబ సర్వే చేసినటువంటి వాళ్ళు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పందులు ఎన్నున్నాయో చెప్పారు కానీ బీసీలు ఎంత మందిరో చెప్పలేదు అధ్యక్ష. ఇప్పటి వరకు పందులు ఎన్నున్నాయో చెప్పారు కానీ ఈ రాష్ట్రంలో కుక్కలు ఎన్నున్నాయి, నక్కలు ఎన్నున్నాయో లెక్కలు చెప్పినటువంటి వాళ్ళు ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం బీసీల లెక్కలను తీసుకొచ్చి మా ముంగడ పెడతా ఉంటే పాపం ఆపోజిషన్ లో ఉన్నటువంటి నాయకులు తీన్మార్ మల్లన్న గారు కూడా చేస్తున్న ప్రభుత్వం मारटपल्ली पुलिस साइबर क्राइम बेदारी टीम ने हाल ही में जुबली बस स्टैंड पर एक बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया। ज़राए के मुताबिक इस प्रोग्राम का मकसद साइबर जराइम से आवाम को रोकने के सिलसिले में उनमें बेदारी पैदा करना था। लोकसभा में कायदे अपोजिशन व कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने दिल्ली इंतखाबात के सिलसिले में अपने हक़ रायदही से इस्तेफादा किया। नामुनासिब रिमार्क्स पर क्या तीनमार मल्लाना को पार्टी से मुअत्तल करने का इम्कान है? बताया जाता है कि पीसीसी इस मसले पर आज शाम फैसला लेगी। तीनमार मल्लाना गुज़िश्ता कुछ दिनों से पार्टी के खिलाफ तबसरे कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ पार्टी के बाज़ कायदीन ने पार्टी सरबराह से इस सिलसिले में शिकायत की थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने अपने हक़ रायदही से इस्तेफादा किया। निर्माण भवन में उन्होंने मरकज़ रायदही पहुंचकर अपने हक़ रायदही से इस्तेफादा किया। हैदराबाद से तिरुपति जाने वाले तैयारे में तकनीकी खराबी के सबब रवानगी में ताख़ीर हुई, जिस पर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर 47 मुसाफिरों ने एहतजाज किया। यह तैयारा आज सुबह 5:30 बजे रवाना होने वाला था, ताहम इस तैयारे में तकनीकी खराबी पैदा हो गई, जिसके नतीजे में इसकी रवानगी में ताख़ीर पर मुसाफिरों में तशवीश की लहर दौड़ गई। शादी की तकरीब के लिए बैंक से निकाल कर ले जाई जाने वाली रकम पर मुश्तमिल बैग की चोरी 2 व्हीलर से कर ली गई। यह वाक़या नारायणपेट जिले में पेश आया। नारायण नामी शख्स ने अपने रिश्तेदार की शादी के सिलसिले में बैंक से 4 लाख रुपए निकाले। वो अपनी 2 व्हीलर पर रकम का बैग लेकर जा रहा था। इसने दुकान से कुछ खरीदने के लिए अपनी गाड़ी को रोका और दुकान पर पहुंचा। इसी दौरान नामालूम शख्स इसकी 2 व्हीलर से रकम पर मुश्तमिल बैग लेकर फरार हो गया। मादापुर में एक 22 साला लड़की ने अपने कमरे में खुदकुशी कर ली। इस लड़की की शिनाख्त रितु जी बासु के तौर पर की गई है, जो मगरबी बंगाल की रहने वाली है और सिद्दीक नगर के एक हॉस्टल में मुकीम थी। इत्तला मिलते ही पुलिस हॉस्टल पहुंची। इसने नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर दिया। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सिकंदराबाद ने बैन रियासती गांजे की स्मगलिंग के रैकेट को बेनकाब किया। 3 फरवरी को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में मुनशियात के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाते हुए एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया, जो छतरपुर से पुणे बजरिए सिकंदराबाद स्टेशन गांजा मुंतकिल कर रहा था। मुलजिम की शिनाख्त लक्ष्मण संभाजी मुतवतिन महाराष्ट्र के तौर पर की गई, जबकि एक और मुलजिम मनोरंजन दास मुतवतिन महाराष्ट्र मफरूर बताया गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।